So you have to speak to the person next to you. और आपको अपने पड़ोसी में जो बैठे उससे बात करना है Please do not disturb me. और उनसे कहो कि मुझे आप तंग ना करें। I am going to listen to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हूँ। You told? आपने कहा And you say you should not sleep. और उनसे कहो कि सोने का नहीं है। Something very important we are going to learn. और कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो हम सीखने वाले हैं। Let's bow our heads for a moment. और कुछ क्षणों के लिए हम अपने सर को झुकाए। Father God, we are grateful, Lord. पिता परमेश्वर हम धन्यवादित है The परमेश्वर, opportunity which you gave us to worship you, Lord. जो मौका आपने हमें दिया आपकी आराधना करने, In spirit and in truth, Lord. आत्मा में और सच्चाई में प्रभु। Lord, Bible's word says through your word is a lamp unto our feet, Lord. परमेश्वर आपका वचन कहते हैं कि आपका वचन हमारे कदमों के लिए रोशनी के And समान light है unto our path. और हमारे मार्ग के लिए रोशनी है। It's a privilege, Lord. ये हमारा सौभाग्य Come है into your presence, Lord, and confess, Lord. आपके उपस्थिति में आकर कबूल करना, Repent of our sins, Lord. हमारे पापों की क्षमा मांगना And walking in a new direction of our life, और Lord. हमारे जीवन के एक नए मार्ग पर चलना। Lord, this is our prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। Speak today in such a way, Lord. आज एक ऐसे रीति से आप हमसे बातें करें, Those who are confused, you will give clarity, Lord. जो लोग उलझाए हुए हैं परमेश्वर वो समझ जाए, Those who are परमेश्वर। struggling, Lord, they will find strength, Lord. जो संघर्ष कर रहे हैं वो सामर्थ को पाए Lord, give us discernment, Lord. और परमेश्वर आप हमें वो पहचान Lord, दें help us to be witness of your word and your grace, और Lord. परमेश्वर आपके वचन और आपके अनुग्रह की हम गवाही दें Lord, we प्रभु। pray, Lord. हम प्रार्थना करते हैं Speak through your servant, Lord. आपके दास के द्वारा हमसे बात As we're करें, listening. जैसे हम सुन रहे हैं। In Jesus' precious name we pray, यीशु के Lord. मूल्यवान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। How many are blessed to be here? कितने लोग आशीषित है यहाँ पर रहने? Something which I want to speak today. आज कुछ ऐसा है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ This is God has pressed upon my heart from 1 year. और परमेश्वर ने मेरे हृदय पर ये 1 साल से रखा है। So I think some months back or years back I heard the message. और कुछ महीने या कुछ वर्ष पहले मैंने इस संदेश को सुना Something which God spoke. और कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया। Last 2 weeks again God was speaking to me. पिछले 2 हफ्तों से परमेश्वर फिर मुझसे वही बात कर रहा है। So something which Jesus Christ was teaching his disciples. और ऐसी एक बात जो यीशु मसीह अपने शिष्य को सिखा रहा था, That comes from the Gospel of Matthew, जो मत्ती के सुसमाचार से आता है, chapter 5. 5वां अध्याय, Matthew chapter 5, मत्ती उसका 5वां अध्याय, verse 38 to 42. 38 से लेके 42 तक। Those who have their Bible, you can open the Bible, जिसके पास पवित्र शास्त्र है आप खोल सकते हैं or you can look at the screen. या आप स्क्रीन पर देख We सकते हो। encourage you to carry your own Bible. हम आपसे हम कहते हैं कि आप अपना बाइबल लेके If you चलें have a mobile or the pad, you can open the mobile and that only for that. और अगर आपके पास मोबाइल या पैड है तो आप सिर्फ पवित्र शास्त्र के लिए ही उसे खोलें, Please do not play games. उस पे आप गेम ना खेलें। Okay. Matthew chapter 5, मत्ती इसका 5वां verse अध्याय 38 to 42. और 38 से लेके 42 हम पढ़ेंगे। He speaks about, can we do an extra mile for others? और ये बात करता है कि क्या हम दूसरों के लिए और एक कोस कार्य कर सकते हैं। I want everybody to be very careful, very attentive. और मैं चाहता हूँ सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। When you read the book of Matthew, जब हम मत्ती का किताब पढ़ते when you हैं, read 5, 6 and 7, जब आप 5, 6 और 7 when you अध्याय read पढ़ते हैं, that's one of the longest speech which Jesus is speaking. और जब आप उसे पढ़ते होगे आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा संदेश है जो परमेश्वर ने And कहा it's है titled the Sermon on the Mount. और उसका जो नाम है वो ये है कि पहाड़ पर जो संदेश है। If you're born again believer, अगर आप पुनर्जन्म फिर से आप नए जन्म पाए if you विश्वासी know हो, Christ, आप मसीह को जानते it's हो mandatory you should read this Sermon on the Mount. और ये महत्वपूर्ण है कि आप इस वचन को अध्यादेश को पढ़ें। If you have not read this, अगर आपने इसे पढ़ा नहीं है or if you have not read this recently, या आपने हाल ही में इसे नहीं पढ़ा, it's a homework assignment for all of you. ये आप सभी के लिए घर जाकर असाइनमेंट है। Make it certain when you go home, और आप देखें कि जब आप घर जाए please read Matthew chapter 5, 6 and 7. कि आप मत्ती उसका 5वां अध्याय, 6वां और 7वां अध्याय पढ़े। We can do that? क्या आप ये कर सकते हैं? Yes? Okay. So Jesus in the Sermon on the Mount, और यीशु ये जो पहाड़ पर जो संदेश है उस पर really teaching of the
how we can live righteously. और वो बता रहा है कि हम धार्मिक रीति से कैसे जिए। He is not speaking how we can save. और वो ये नहीं कहता है कि हम कैसे बचाएं। He is not talking about how we worship the Lord. और वो हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें उसके बारे में बात He is नहीं not कर रहा। sharing how you come and confess your sins. आप पापों का पश्चाताप कैसे वो करें वो नहीं बता रहा। But we read these chapters, लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं 5, 6 and 7, 5वां, 6वां और 7वां, he's taking a moment to teach his disciples और वो एक क्षण ले रहा है अपने शिष्य को सिखाने a road to discipleship. कि एक शिष्य बनने के मार्ग पर। Hallelujah. हालेलुया। You and me become the believer. आप और हम विश्वासी बनते हैं। There are certain expectation God has from you and me. और कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं जो परमेश्वर आपसे और हमसे रखता है। We say we are a believer. हम कहते हैं कि हम विश्वासी तो We हैं, identify with those people who have faith in Christ. और हम उन लोगों के साथ जाने जाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास We करते say हैं। we follow Lord and Savior Jesus Christ. और हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता के पीछे चलते हैं। Matthew chapter 5, 6 and 7, मत्ती उसका 5वां, 6वां और 7वां he अध्याय speaks about the requirement of God needs from you and me when you start following Him. और ये उसके बारे में बात करता है कि जब आप और हम परमेश्वर के पीछे चले तो हमारी क्या कार्य है। Chapter 5, 5वां अध्याय, when you read through Matthew chapters 1 to 4, और जब आप मत्ती उसके पहले 4 अध्याय पढ़ते हो we can see Jesus is calling many people to follow Him. और आप देखोगे यीशु बहुत से लोगों को बुलाता है उसके पीछे चलने, It cost them nothing और उनको कुछ कीमत नहीं चुकाना था, because Bible says He was walking on the Sea of Galilee. क्योंकि बाइबल कहता है कि वो गलील के समुद्र के और चल रहा He saw था। Peter and Andrew उसने पतरस और एंड्रू को देखा and He said them, और उनसे कहा follow me. मेरे पीछे चलो। And they see they dropped their nets and started following Jesus Christ. और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जाल को फेंक दिया और यीशु के पीछे चलने लगे। That was easy. ये आसान था। But again when we go, we see James and John, the sons of Zebedee. और जब हम आगे चल के देखते तो जेम्स और जॉन जो जेबडी के पुत्र थे, He calls them वो उनको बुलाता है and they leave their father's business and they started following Jesus Christ. वो अपने पिता के व्यवसाय को छोड़ते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं। Okay, that is just easy. वो भी आसान है। But after the chapters when you read that, लेकिन उसके बाद के अध्यायों में Jesus start doing miracles. यीशु चमत्कार करता है The people was seeing that what Jesus was doing. और लोग देख रहे थे कि यीशु क्या कर रहा He है, said He heals the sick. और वो जो बीमार है उनको चंगाई देता He है, started make people to walk who were paralyzed. और जो लोग को लकवा मारा था वो उनको चलाता He है, gave sight to the blind, the Bible says. जो अंधे हैं उनको वो रोशनी देता है, He बाइबल कहता cast है, out demons. और दुष्ट आत्माओं को भगाता And है। Bible says a great crowd started following Jesus Christ. और बाइबल ये कहता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलने लगी, That's going to happen. और ये होने ही Because वाला था। wherever the miracles are there, क्योंकि जहां कहीं भी चमत्कार है, wherever something happens, the people follow. जहां पर कुछ भी होता है लोग वहां पर आते They're हैं, excited about this person called Jesus Christ. और ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह उसके बारे में बहुत उत्साहित है, All are enjoying the journey. और सभी लोग उस यात्रा पे जा रहे हैं, Everything is good. सब कुछ अच्छा है। Now Jesus is speaking something very specific. और अब यहाँ पर यीशु कुछ स्पष्टति से बात कर रहा So है, Lord God is taking the crowd and the aside और अब परमेश्वर जो भीड़ है उसको बाजू में लेता है, and sharing with them very important things in life. और जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातों को उनको समझाता है। He says, वो ये कहता है, getting saved and following me, speaking that was very easy sometimes. और वो कहता है कि बचाए जाना और मेरे पीछे चलना कभी कभी आसान But I है, want to let you know there are some laws. There are some laws of righteousness. लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता के कुछ नियम है, Some expectation from believers. और विश्वासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं, Something which God desires from us that is not so easy sometimes. और कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है जो कभी कभी आसान नहीं He was होगा, speaking about them to roads of discipleship. और वो उनसे शिष्य बनने के मार्ग के बारे में बात कर रहा When था। you read this, और जब हम ये पढ़ते the हैं, first thing we can read is what God is expecting from you and me. पहला जो हम बात पढ़ते हैं वो ये है कि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या अपेक्षा When you रखता say I है, have faith and when you start following Him. और जब हम कहते हैं कि हमारा विश्वास है उस पर हम उसके पीछे चलते हैं। When you read the Sermon on the Mount, जब आप उस पहाड़ पर जो संदेश है उसको पढ़ते हो, has nothing to do with your relationship with God.
और परमेश्वर के साथ आपका संबंध के बारे में ये कुछ नहीं है, It doesn't speak about that. ये उसके बारे में नहीं But है। rather your relationship with other people. लेकिन दूसरों के साथ आपका संबंध कैसा है उसके बारे में है। Jesus is laying out the foundation. ये परमेश्वर यहाँ पर वो नींव को रख रहा है। What he is expecting from you and me. वो आप सर हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, Not about follow some religion. और वो सिर्फ हमें धर्म के बारे में या उसके पीछे But चलने he is की speaking very specifically about your relationship with other people. लेकिन स्पष्ट रूप से हमारा दूसरों के साथ संबंध कैसा है उसके बारे में है। The primary expression of my faith and your faith. और जो आपके और हमारे विश्वास का जो मूल अपेक्षा ये The है, primary expression when I say that I follow Christ और जो मूल अपेक्षा जब मैं ये कहता हूँ कि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, ये है, is not that how loud is your shout in the church. और वो ये नहीं है कि मैं कलीसिया में कितना जोर से It's चिल्लाता not हूँ, that how good you dance in the आप church. कलीसिया में कितने अच्छे से नाचते हो उसके It's बारे not में that नहीं how है, big the Bible we carry. और आप बाइबल को कितने बार पढ़ते हो उसके बारे में नहीं But है। the first proven experience that when you say that you are a follower of Christ, when you say your faith in Christ, और जो सबसे पहला अनुभव जब आप ये कहते हो कि आप मसीह में विश्वास करते हो, मसीह के विश्वास में उसके पीछे चलते how you हो, deal and interact with other people whom God put across in your life. जो परमेश्वर ने लोगों को आपके जीवन में रखा है, उनके साथ आप बर्ताव कैसे करते हो। Hallelujah. हालेलुया। How you interact with the people और आप उन लोगों से बर्ताव कैसे करते हो in your daily experience. आपके हर रोज के अनुभव में। So when you read this in the real sense, Jesus is saying, जब आप ये पढ़ते हो, सच में परमेश्वर ये कह रहा it है, is not how loud you shout. वो ये नहीं कि आप कितना जोर से चिल्लाते He's हो, speaking about how deeply you love others. वो ये बात करता है कि आप कितने गहराई से दूसरों से प्रेम करते हो। At the end of the day, that matters to the Lord. दिन के अंत में परमेश्वर को वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। Do you agree with me? क्या आप मुझसे सहमत हो? It's not about our worship, ये हमारी आराधना के बारे में नहीं है, but your relationship with other people. लेकिन दूसरों के साथ आपका संबंध है। That comes from where? वो कहाँ से आता है? Heart. हृदय से। And God looks at where? और परमेश्वर कहाँ देखता He है? looks at the heart. वो हमारे हृदय को देखता है। That means इसका अर्थ ये when है, I say I love the Lord, जब मैं ये कहता हूँ मैं परमेश्वर से when प्रेम I करता say I हूँ, follow Christ, मैं ये कहता हूँ कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता and if I'm हूँ, not treating the people well, और मैं दूसरे लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा, if you cannot give honor to the people in the church, अगर आप कलीसिया में लोगों को सम्मान नहीं दे and सकते, I'm saying the Lord is my head of my house and my family, और मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर मेरे घर का और मेरे परिवार का मुखिया है, how you treat the people Monday to Friday in the workplace, और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपने कार्य क्षेत्र में आप लोगों से कैसे बर्ताव करते हो। important you carry a Bible into this church and shout hallelujah. आप कलीसिया में बाइबल लेकर आए और जोर से हालेलुया चिल्लाए, वो मायने नहीं When you go in the रखता। office, all people say how bad he talks, और आप ऑफिस में जाते हो तो आप कैसे बुरे रीति से बात करते हो, because that is not the sign. That is not a sign of faith and fellowship. क्योंकि वो विश्वास का और संगति का चिन्ह नहीं है। Amen. आमेन। The primary way, the first way, the first thing, the first and the primary way और जो पहली बात है और मूल की बात ये that I है prove that I love God, I walk with God, कि मैं ये साबित करता हूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, is how we treat other people. वो ये है कि मैं दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करता हूं। Amen. आमेन। It's all about our relationship with others. दूसरों के साथ संबंध हमारा कैसा है उसके बारे में है। The second thing, when you read this Sermon on the Mount, दूसरी बात, जब हम इस संदेश को जो पहाड़ पर है उसको पढ़ते हैं, everything Jesus is asking you and me to do और सभी बातें जो यीशु आपसे और हमसे कहते हैं बात करने, to prove that we are following Him, कि हम ये साबित करें कि हम उसके पीछे चल रहे हैं, it is not an easy thing to do. वो एक आसान बात नहीं है करने के लिए। When you read this thing, Jesus says continuously, जब आप इसको पढ़ते हो, यीशु हमेशा बार बार ये कहता है you have heard it, he said. कि तुमने ये सुना है, He said, I say unto you. मैं तुमसे ये कहता हूँ। That is, Jesus is presenting another way of life to that. और परमेश्वर जीवन का एक दूसरा तरीका उसके लिए बता रहा That है, is not easy. वो आसान नहीं है। As a matter of fact, discipleship और सच में अगर बताए तो शिष्य बनना है, often call and God commands us to do something very radical sometimes. और कभी कभी परमेश्वर हमें बुलाता है या कुछ ऐसे करने कहता है जो एकदम अलग हटके हो। Not to do what you want to do, जो आप करना चाहते हो वो नहीं करना, and to do normally what you do not want to do. और जो साधारण रीति से जो आप नहीं करना चाहते हो वो करना। Discipleship. शिष्य बनना, When you follow Christ, जब आप यीशु के पीछे चलते हो, we should know हमें ये जानना not है, to do what you want to do, जो आप करना चाहते हो वो नहीं करना, and to do
और वो करना that you would normally won't do. जो आप कभी कर भी नहीं रहो. So Jesus is saying, यीशु कहता है, listen and be careful what comes out of your mouth, सुनो और ध्यान पूर्वक रहो तुम्हारे मुख से क्या निकलता है, especially when you are angry. खास करके जब आप नाराज हो. That is natural for all of us. I am not exception. और ये हम सभी के लिए स्वाभाविक है, मैं इसमें कुछ अलग नहीं हूँ. Many of us, the minute we are mad, और हम में से बहुत लोग जब हम नाराज हैं, we are justified and we believe that I got the right to speak. और हमें ये लगता है कि मैं सही हूँ और मेरे पास ही हक है बात करने का, And we speak. और हम बात करते On हैं. Sunday we come and repent. और फिर संडे को हम आते हैं और हम पश्चाताप करते हैं. And Jesus is saying here, और यीशु यहाँ पर कहता है, when people do you wrong, you forgive them. जब लोग तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करें या गलत करें उनको क्षमा कर. That is not natural. और ये स्वाभाविक नहीं है, सांसारिक नहीं है. My natural tendency is और ये स्वाभाविक मेरा बर्ताव ये है to hold grudge, कि मैं उनके विरुद्ध में कुछ ले रखूं to bitter against them. और उनके विरुद्ध में कड़वापन रखूं. Yes or no? हाँ या नहीं? I don't know. Yes, yes. हाँ. Our natural instinct is that. और हमारा स्वभाव ऐसा है. But Jesus saying, लेकिन यीशु कहता है, and further when you read, he says, stop looking, lusting. He speaks about that. और आगे जब हम पढ़ते वो ये कहते हैं कि देखना बंद करो. Hallelujah. Hallelujah. He says, watch what you say. वो ये कहता है तुम क्या बोलते हो उसको देखो. And he says further, when you read that, he says, do not swear by anything. सब ना लो किसी भी बात की. yeah. Just do what you say. और जो तुम बोलते हो वही करो. You are going to be, let your yes be yes and your no be no. तुम्हारा हाँ हाँ रहे, ना ना रहे. If you are going to do it, अगर तुम वो करने वाले हो, if you say that like that, अगर तुम वो बोलते हो, do it. उसको पूरा करो. If you have no intention of doing it, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं है करने की, then don't tell me that I am going to do it. और तो आप ये ना कहो कि मैं ये करने वाला हूँ. He is very specific when you read that. जब आप उसे पढ़ते हो वो बहुत स्पष्ट है. He is saying, have integrity on what you are speaking. और वो ये कहता है कि जब तुम कुछ बोलते हो अपने अंदर उस सच्चाई को रखो. Yes? So I am not speaking this from the Bible. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र में है. Then he says, फिर वो कहता है, love your enemies. अपने शत्रु से प्रेम करो. There is no trophy or award for loving the people who loves you. जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने के लिए कोई ट्रॉफी या कोई अवार्ड नहीं है. Even the Pharisees do that. और तुम्हारा एक दाग टूटा है, You cannot remove all the tooth from his mouth. तुम जाकर उसके सभी दांतों को नहीं तोड़ सकते. You understanding this? क्या आप ये समझ रहे हो? Eye for an eye, tooth for a tooth. That means आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत. उसका अर्थ to ये है limit the revenge. कि आप उस बदले का एक सीमा रखें. Limit the revenge you and me can seek. जो आप और हम बदला प्राप्त कर सकते, बदला ले सकते, उसका एक सीमा रखना. So what you experience, so much only revenge you can take. और जो भी आप अनुभव करते हो आप उतना ही बदला ले सकते हो. So you can take the revenge as much as the offense you received, he says. और जितना तुम्हारे विरुद्ध किया है उतना ही बदला तुम ले सकते हो. Is it clear? क्या ये स्पष्ट है? People at the back, पीछे के लोग, eye for an eye आंख के बदले आंख and tooth for one tooth. और एक One दांत, tooth for one tooth. एक दांत के बदले एक ही दांत. This law was not meant to say और ये नियम इसके लिए नहीं बनाया गया that if था someone takes your eye, कि अगर कोई तुम्हारे आंख को लेता है, you take the eye. तुम भी उसका आंख लो. It was a limit. वो एक सीमा था That how much that you should take or how much revenge you should do. कि तुम कितना ले सकते हो, तुम कितना बदला ले सकते Okay, that's the हो. Old Testament. ये पुराना Now नियम है. Jesus says here, अब यीशु यहाँ पर कहता you है have heard it that कि तुमने ये सुना it है says that eye for an eye and the tooth for tooth. कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले But दांत. I say to you, लेकिन मैं तुमसे ये कहता but I हूँ, say to you, is teaching us, वो हमें ये सिखाता और कहता मैं तुमसे कहता हूँ although there are laws that limit the revenge, कि वहाँ पर नियम है कि तुम्हारे जो उस बदले को सीमित करता I am है. asking this to take to another level. मैं चाहता हूँ कि तुम उससे अगले स्तर पर And he लेके said, do जाओ. not seek revenge at all. और वो कहता है कि तुम बदला देख लो ही मत. Hallelujah. हालेलुया. He is saying, वो ये कहता है, you heard that, but I am saying you do not take revenge at all. उसने कहा कि तुमने वो सुना है लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हें बदला लेना ही नहीं है. So you don't have to give back. कि इसका अर्थ है कि तुम्हें फिर से जो किया गया है वो उसे देना नहीं है. You don't have to take an eye for an eye. और तुम्हें आंख के बदले आंख नहीं लेना है.
You don't have to take a tooth for a tooth. तुम्हें दांत के बदले दांत नहीं लेना है। If someone slapped you, किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा हो, Jesus says, यीशु ने कहा let it go. उसको जाने दो। Understanding? क्या आप ये We'll go a समझ little रहे more deep. हैं? और गहराई में जाते हैं। Yes? हाँ, Yes? All are ready? सब तैयार है। Now, if someone slaps you, the Bible says, बाइबल कहता है कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारता है, what the verse says? वचन क्या कहता है? Someone slaps you where? राइट। On the right cheek. अगर Right? कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ If I am मारे, standing here, अगर मैं यहाँ पर if खड़ा, I am to slap Shibu अगर मुझे शिबू को थप्पड़ मारना है with my right hand, मेरे दाहिने हाथ से, can I slap in his right cheek with my right hand? क्या मैं मेरे दाहिने हाथ से उनके दाहिने गाल पर चमाट मार सकता हूँ? कैसे? I can do. Can do. You have to prove. जांच के देखना है। Which is the right side? So if I am to just slap with my right hand, will you be able to do that? No. अगर मैं दाहिने हाथ से उनके दाहिने गाल पर मारूं तो क्या मैं वो कर सकता हूं? No. See, Bible never speaks about the left hand. Mostly speaks about the right hand. और हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में दाहिने हाथ के बारे में बहुत लिखा है, बाएं हाथ के बारे में नहीं। Hope you are with me. आशा है आप हमारे साथ है। So if only way I can slap somebody who's standing in front of me on the right side. और जब अगर कोई मेरे सामने खड़ा है, उनको अगर मुझे दाहिने गाल पर मारना है तो एक ही तरीका I है। can do like this back slap. और मैं उनको पीछे से थप्पड़ ऐसा पीछे उल्टे से- हाथ थप्पड़ Yeah, मार सकता back हूं। slap we can say that. Back slap. और उल्टे हाथ थप्पड़ मार सकता Are you हूं। with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Yes, okay. सब सही है। We'll go a little more further. और आगे जाते हैं। Or somebody want to come up to prove that point? कोई आगे आके बताना चाहता है कि हम जो बोल रहे सही है? Okay. So if somebody in front of you, if you want to slap someone on the right side, right cheek, अगर कोई आपके सामने खड़ा है और आपको उनके दाहिने गाल पर थप्पड़ मार रहा only है, way we can do is the back slap. और एक ही तरीके से हम कर सकते हैं कि हम उसके अपने हाथ के पीछे से मार सकते And हैं। now in the Bible, और अब पवित्र शास्त्र में the back slap is not for an injury. और जो हाथ के पीछे से ऐसा पीछे हाथ से मार उल्टे हाथ मारना कोई आपको चोट नहीं पहुंचाता। It is an insult. वो एक अपमान है। Yeah. So understand the depth of what Jesus is speaking. यीशु क्या कह रहा है उसके गहराई को आप He is समझें। not saying that someone injures you, let it go. और वो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचे तो उसे जाने दे। He is speaking something much deeper. वो कुछ और गहराई को बात He को कह says रहा है। if somebody insults you, और वो ये कहता है अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, somebody disrespects you, कोई तुम्हारा सम्मान ना करे, somebody calls out your name or speaks something bad about कोई you, अगर तुम्हारे नाम को खराब करे या तुम्हारे विरुद्ध में कुछ somebody बोले, mistreats you, कोई तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ना करे, let me say sometimes insult hurt more than injury. और कभी मैं आपको बताना चाहिए कभी कभी जो अपमान है वो चोट से ज्यादा दुखता है। Because injury can heal, क्योंकि जो चोट है वो ठीक हो सकता है, but that insult stays around inside us. लेकिन जो अपमान है वो हमारे अंदर ही रहता है। And you remember all life, और हम पूरे जीवन भर उसे याद रखते even हैं। after the injury is healed, do you remember the insult? और आपको जो चोट लगा है वो आप ठीक होने के बाद भी आपको वो अपमान याद रहता So है। here Jesus is saying, यहाँ पर यीशु कहता if है someone insults you, अगर कोई तुम्हारी अपमान करता our है, natural desire, instinct is to insult them back. और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम यहाँ पर ये कहता है Refuse revenge. कि उस बदले को आप ना ले। Even somebody insults you, अगर कोई तुम्हारी अपमान भी करे refuse revenge. तो उस बदले को आप ना ले। So Jesus is not saying you should move around people hurting you always. और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने आसपास जो लोग हैं उनको चोट पहुंचाते जाते No, हो। you allow yourself or letting people to abuse you always or you get hurt always, या परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि लोगों को तुम्हें चोट पहुंचाते रहने दो and let people hurt you. You just walk around passively. He's not speaking about that. यीशु ये नहीं कह रहा कि लोग अगर तुम्हें चोट पहुंचाते जाए तुम उसके लिए कुछ मत करो, ऐसी जो यीशु ये नहीं कह रहा। He says, वो ये कहता है if अगर somebody slaps you, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे, if अगर, there's a possibility, if और यहाँ पर एक संभावना है कि अगर ये हुए, that if don't happen every time, it happens only और sometimes. ये जो अगर है वो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। Yes or no? हाँ या नहीं? So that Jesus says, तो वहां पर यीशु कहता है if it happens, अगर ये होता है
I was just thinking, मैं ये सोच रहा था I can see sometimes the insult is coming. और मैं देख सकता हूँ या पहचान सकता हूँ कि अपमान अभी आने वाला है। Then what is the best thing? तो सबसे उत्तम क्या है? Somebody slaps you. What if you see it coming? What do you do? और अगर कोई थप्पड़ मारे, आप देख रहे हो कि थप्पड़ आने वाला है, आप क्या करोगे? What do you do? आप क्या करोगे? You go back? आप पीछे जाओगे? Yes or no? हाँ या नहीं? That's a natural instinct. You go back. और ये हमारा स्वभाव है कि हम पीछे मुड़ना चाहिए। So, don't you be in the situation और आप ऐसे परिस्थिति में ना रहे many times so that people can insult you. बहुत बार ताकि लोग आपको आपके अपमान So, करें being slapped by the people. और लोगों से थप्पड़ खाना। Hallelujah. हालेलुया। So, be careful of yourself. अपने आप को आप संभाले So रखें। when I see the possibility of slap is coming, और जब मैं ये देखता हूँ कि ये संभावना है कि थप्पड़ आने I वाला am है, well within my Christian rights to move away and avoid that. और मैं अपने मसीह के मेरा ये हक है कि मैं उससे पीछे हटूं। Nobody have the right to insult you. और किसी के पास भी ये हक नहीं है कि वो आपका अपमान करे। After that, even that you want to speak, अगर उसके बाद भी अगर आपको बात करना है, go to the person and speak politely. और आप उस व्यक्ति से जाकर आप अच्छे से बात करें। Hallelujah. Hallelujah. Make him understand उसको अच्छे से समझाएं what words, which words hurted you. कि कौन से वो शब्द है, क्या वो शब्द है जिसने आपको चोट पहुंचाई। So here he says, यहाँ पर वो कहता है, so he says, you prove your walk with the Lord. और वो ये कह रहा है कि तुम अपने चाल को परमेश्वर के साथ इससे You prove that you are the follower of Christ. आप ये सिद्ध करो कि आप यीशु के पीछे चलने वाले हो Not by slapping back. और वापस उल्टा थप्पड़ मार के नहीं। So the first thing, पहली बात, refuse revenge. कि बदले को आप नकारे, Let it go. और उसको जाने दे। Because whenever you seek revenge, क्योंकि जब भी आप बदला लेना चाहते when I say I am the follower of Christ, I have faith in Christ. जब मैं ये कहता कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ, मैं विश्वास करता So हूँ, whenever I seek revenge, जब भी मैं बदला लेना I am चाहता हूँ, switching the team. I am being the part of the team of evil one. और मैं मेरे जो टीम है उसको बदल रहा हूँ, और जो दुष्ट है उसके टीम में मैं जाता हूँ। When we send sometimes children to school, और कभी-कभी जब हम बच्चों को पाठशाला में भेजते हैं, not now when we were small, अभी नहीं जब हम छोटे थे, they say somebody hit you, don't leave them, put him into the ground. वो कहते थे कि अगर किसी ने तुम्हें मारा उनको छोड़ना नहीं, उनको भी तुम मार के गिराओ। So that's the time teacher calls us and the principal calls us. और वो समय था जब टीचर हमें बुलाते थे, प्रिंसिपल बुलाते थे। And so we don't have that right or liberty. We have zero tolerance. If you have any complaints, if somebody hit your children, और वो ये कहते हैं कि हम इसको हम ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते, हम इसको सहेंगे नहीं। अगर तुम्हारा कोई समस्या है, you have a class teacher. तुम्हारे पास क्लास टीचर You है, can go to the class teacher and complain about that. और आप क्लास टीचर के पास जाओ, उनको कंप्लेन करो। And the class teacher got the authority over every children in the class. और क्लास टीचर के पास क्लास में जो भी बच्चे हैं उनके पास पर अधिकार है, And the class teacher will take care of that. और जो क्लास टीचर है वो उसका देखेगी। Your son or your daughter should not handle that. और आपका बेटा या आपके बेटी ने उसको नहीं करना In चाहिए। the same way, उसी रीति से when we are insulted, when we are down, when we are slapped, जब हमारा अपमान होता है, जब हम नीचे हैं, जब हमें थप्पड़ मारा जाता let's है, know that somebody who got the authority, और हम ये जाने की कोई है जिसके पास वो अधिकार है, who is the creator of everything, जो सभी बातों की सृष्टि करने वाला है, he is on our side. वो हमारी ओर है। We can learn that from the life of Jesus Christ. हम ये यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं That we are not going to put our hands on anybody. कि हम अपने हाथों को किसके ऊपर नहीं रखेंगे। Yes or no? हाँ या नहीं? You don't have to seek revenge. और आपको बदला नहीं लेना है। Take to the creator और सृष्टिकर्ता के पास who got the authority जिसके पास अधिकार for है, everything in the face of the earth. और इस धरती पर जो भी है उसके ऊपर उसका अधिकार And है, trust God that He can handle that. और परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो उसे पूरा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. The first thing, refuse revenge. पहली बात यह है कि आप बदला को नकारें। Trust God that He is going to handle that. परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो उसको देखेगा। You don't go to slap them back. और उनको फिर से थप्पड़ नहीं मारना है। Second thing He says, दूसरी बात वो ये कहता है, if a man sues you, अगर यदि कोई तुझ पर
नालिश करके and wants to take your tunic, let him have your cloak also. नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे दोहर भी लेने दे। That's a different, difficult, the tunic, cloak. और ये थोड़े नालिश और जो दोहर है We'll come to that. Jesus is speaking that you should have a selfless spirit. और वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास निस्वार्थ आत्मा होना चाहिए। Somebody can say, क्या हम ये कह सकते हैं? what? Selfless spirit. निस्वार्थ आत्मा। The first thing is refuse to revenge. पहला बात ये है कि बदला ना ले। Second, दूसरी selfless spirit. निस्वार्थ आत्मा। Because we don't wear the tunic and we don't wear the cloak, so we don't understand what Jesus is speaking. क्योंकि हम जो है वो जो वस्त्र है वो नहीं पहनते तो हम नहीं समझ पाएंगे यीशु क्या कह रहा So है। let us learn. तो हमें देखना है। Tunic is the undergarment they used to wear that time. और जो नालिश था वो अंदर के भाग में वो पहनते थे उस समय। Like we can say the man used to wear the banian, we can say the tunic is the banian. और जैसे मनुष्य जो है बनियान पहनते थे, जो नालिश है वो बनियान है। And the cloak was the outer garment the men used to wear on top of the tunic. और दोहर जो है वो ऊपर से जो पुरुष है वो पहनते थे। That is shirt, your coat, what you are wearing. हमारा जो शर्ट हो या कोट हो जो हम पहनते हैं। So tunic is the undergarment नालिश जो है वो अंदरूनी कपड़ा है। and the cloak is the और दोहर जो है outer garment. वो बाहर का कपड़ा है। When you see Exodus chapter 22, जब हम एक्सोडस उसके 22 अध्याय verse 25 to 27, 25 से लेकर 27 he तक speaks about the Jewish law. और वो जो यहूदियों का नियम है उसके बारे में बात करता है। As per the law, उस नियम के you अनुसार can sue me. कि तुम मेरे विरुद्ध कुछ कर सकते हो। You can sue me. You can put a case against me. Sue me. तुम मेरे विरुद्ध केस कर सकते हो And take my tunic. You can take my undergarment. और तुम मेरे नालिश को ले सकते हो। But the law prohibited him from taking the outer garment, the cloak. लेकिन जो नियम है उसने उसको उसके दोहर को लेने से रोका। Understanding? क्या आप ये समझ पा रहे हो? As per the law, नियम के अनुसार if you can sue me, अगर कोई तुम पर कोई नालिश करे and you can take my banian, but you cannot take my shirt. तुम मेरे बनियान को ले सकते हो लेकिन मेरे शर्ट को नहीं ले सकते। Because if you take both of them, there will be no clothes upon him. क्योंकि अगर तुम दोनों ले लेते हो तो उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं होगा। So the law says, तो नियम ये कहता है the man's tunic you can take in the court, कि व्यक्ति का जो है नालिश तुम कोट में लेकर जा सकते हो। undergarment, और जो अंदरूनी but you have to leave the cloak so that he has to cover himself. लेकिन दोहर को रखना है ताकि वो अपने आप को ढके। Now don't think that Jesus is telling to you walk around just like that. He's not telling you about that. और आप ये ना समझे कि यीशु आपको ये कह रहे हैं कि आप ऐसे ही वहां पर चले। But Jesus is saying, लेकिन यीशु if कहता somebody है is so desperate, कि अगर कोई इतना भी उसको ये चाहिए, if they need a tunic which is very inside, अगर उनको वो उनका जो नालिश जो अंदर का भाग है वो लेना चाहता then है, probably he need your cloak, your shirt also. तो तुम्हें उसको तुम्हारे दोहर की भी शायद जरूरत He's होगी। saying, तो ये it कहता is a है legal right to hold the cloak. There's a legal right. और ये व्यवस्था के अनुसार ये आपका हक है। But sometimes you have to give back your legal rights to someone who is in need, he says. लेकिन जब कोई जरूरत में तो आपके हक को भी आपको दूसरों को देना पड़ता है। Because it is in the best interest of someone else. क्योंकि वो दूसरों के लिए अच्छा है, दूसरों के फायदे का है। That we to learn to be selfless, it speaks about that. कि हमें खुद के लिए खुद का त्याग करना है। It is clear? क्या ये स्पष्ट है? How many are understanding this? कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? Any doubt? You can ask. क्या कोई Before संकोच we है? move आगे बढ़ने forward. से पहले आप हमसे पूछ सकते हैं। He speaks about that. वो उसके बारे में बात करता I am है। living a life not only the best interest of myself, मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने उत्तम जीवन को नहीं जी but रहा। I say I got faith in Christ. लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरा परमेश्वर पर विश्वास When I है, say I follow Jesus Christ, जब मैं ये कहता हूं मैं यीशु के पीछे चलता हूं, by the fact I am ready to surrender my rights और उसके सत्य के अधीन पर मैं अपने जो हक है उसको दे in order to give someone the best, ताकि मैं किसी और को उत्तम दूं। that trusting God that He is going to provide me. परमेश्वर पर ये विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा। Hallelujah. Hallelujah। Paul picks up this statement और इस वाक्य का जो अर्थ है, and he speaks in the New Testament that repeatedly. Paul is speaking. और पौलुस नए नियम में बार-बार इसको दोहराता है। Paul always says we have to take care of
others than ourselves. पौलुस हमेशा कहता है कि अपने से बढ़कर दूसरों का ख्याल आप When रखें। you read Philippians chapter 2 and verse 3, और फिलिप्पी उसको दूसरा अध्याय 3 वचन को जब हम he पढ़ते says, हैं let us learn to esteem others more than ourselves. और वो ये कहता है कि हम दूसरों को अपने से बढ़कर समझे, Not looking just to the things of ourselves, but looking into the concern of other people, he says. और हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। Esteem और दूसरों को बढ़कर us. अपने आप को, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? Esteem others और दूसरों को अपने से बढ़कर, more than ourselves. अपने आप से बढ़कर। Is it possible? क्या ये संभव है? Esteem others. दूसरों को अपने से बढ़कर He's मानना। not saying he's educated or he knows. He's not speaking about that at all. It's like esteem others. He speaks about the esteem others. और वो ये नहीं कह रहे कि वो पढ़ा लिखा है या वो बहुत उसको आता है। In whatever category they are, वो किसी भी भाग में क्यों ना esteem हो, others more than ourselves. अपने आप से बढ़कर दूसरों को आप बड़े Not मानें। looking just to the things of ourselves, सिर्फ अपने हित की बातों को ना but देखते looking to the concern of other people. लेकिन दूसरों की हित की भी चिंता हम करें। Again, he says in Romans, Paul is saying in Romans chapter 12 and verse 10, और हमें उसके 12वें अध्याय 10 वचन में पौलुस फिर से we कहता have to है learn to honor others than ourselves. और हमें अपने से बढ़कर दूसरों का सम्मान करना सीखना है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is speaking that you and me, we have to live in such a way और यीशु बात कर रहा है कि आपको और हमको इस प्रकार जीना है that we know how to take care of others. ताकि हम दूसरों का देखभाल कैसा करें वो We समझें। know to how to take care of the interest of others. दूसरों के हित की चिंता आप कैसा करें। I know it's a very difficult thing sometimes. कभी-कभी थोड़ा बहुत मुश्किल है। But one thing I have to tell you, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, though it is very hard, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, but if you get that right, लेकिन अगर आप उसको सही रीति से करो, we can never go wrong by making some people big. और दूसरों को बड़ा मानकर आप कभी कुछ गलत नहीं कर You सकते। can never go wrong making some people special. और दूसरों को खास बर्ताव करके या खुद को खासपन का अनुभव देकर आप कुछ गलत You नहीं can कर never go wrong making some people important. सकते। और किसी और को ज्यादा महत्व देकर आप कभी कुछ गलत नहीं कर You सकते। can never go wrong giving some people your undivided attention and honoring them. अपना पूरा ध्यान किसी को देकर, अपना आदर सम्मान दूसरे को देकर आप कुछ गलत नहीं कर Even though they are not in your level. आप वो आपके स्तर पर नहीं होंगे, The फिर way you live, they are not living that level. आप जिस तरीके से जीते हो वैसे शायद वो नहीं जीते But हो। when you do that, लेकिन जब आप वो करते when you हो, make them feel important, जब आप उनको महत्वपूर्ण महसूस when you look करते at their हो, eyes and you speak to them as they are a human being, और जब आप उनके आंखों में देखकर कहते हो कि वो मनुष्य जैसे है, so that's very much important when you, the place where you work, how you talk with the housekeeping staff. और जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, आप जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उनसे कैसे बात करते हो, Or the people do not have a house, how they speak to them. या जो लोगों के पास घर नहीं, आप उनसे कैसे बात कर सकते Or हो, how you honor the brothers and sisters in the church. कलीसिया में भाइयों और बहनों का सम्मान आप कैसे How करते you हो, talk with them. आप उनसे बात कैसे करते हो। Bible speaks about that, how important it is. बाइबल उसके बारे में बात करता है कितना He or the महत्वपूर्ण she may not have the most important job. और उस व्यक्ति के पास शायद बहुत महत्वपूर्ण नौकरी नहीं They है, don't have the biggest job. शायद सबसे बड़ा नौकरी भी नहीं होगा, But you can never go wrong making those people feeling important. लेकिन आप उन लोगों को महत्वपूर्ण मानकर कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। Do you agree with me? क्या आप हमसे सहमत I हैं? remember Rudra's mother. और मुझे याद है सुरुचिरा की माँ, She passed away 1 year back. और 1 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ, One day she took all the maids, और एक बार उन्होंने सभी जो काम करने वाले हैं उनको लिया, 3 or 4 maids who was working with us and her, और 3 या 4 जो काम करने वाले स्त्रियां थी जो हमारे साथ काम and took them to fine dining to have food. और उनको उन्होंने फाइन डाइन लेकर गए भोजन के लिए। It doesn't make sense to us why she's taking them for this hotel to have food. और वो हम नहीं समझ पाए कि वो उनको होटल में क्यों लेके जा रहे हैं भोजन करने। Good restaurant. और सबसे बेहतर रेस्टोरेंट, All the maids said we never been to such kind of restaurant. We never had such kind of food. और जो सभी स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि हम कभी ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं गए, ऐसे भोजन कभी नहीं खाया है। And she gave them everything. Everybody was some gifts. और सभी को कुछ भेंट उन्होंने दिया, But something which she did, लेकिन कुछ ऐसा जो उन्होंने किया they stayed with the maids for very long till now. जो अभी तक उन स्त्रियों के साथ रहा। And when she passed away, जब उनका देहांत हो we could see how the love and the dedication they had. और हम देख पाते हैं कि किस प्रकार का प्रेम और लगाव उनका था।
You can never go wrong और आप कभी गलत नहीं कर सकते when you give somebody importance. जब आप किसी और को ज्यादा महत्व When you दो make them feel important, और उनको आप महत्वपूर्ण महसूस make them करो feel big, और उनको बड़ा महसूस it करो, always come back to you. वो वापस आपके पास ही आता है, Always come back to you. वो वापस आपके पास ही आता I है। remember one brother was sharing और मुझे याद है एक भाई बांट रहे at the थे time of college days. कॉलेज के दिनों में In the canteen there was staff और who served them the food. कैंटीन जो स्टाफ थे जो खाना परोसते थे One day the group of 5 people decided और एक दिन 5 लोगों का ग्रुप ने निर्णय लिया to take them out. कि वो उनको बाहर लेकर So जाए they took them to the restaurant. और फिर उन्होंने उनको रेस्टोरेंट में लेके They गए took them to see some play or something. और कुछ खेल या प्ले देखने को लेकर They गए spent time with them for 2 or 3 days. और 2 दिन उनके साथ उन्होंने समय बिताया I don't know why. He was saying, I don't know why I did it. Why we felt like doing it. और उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं हमें लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए But the other people are looking at them. What kind of people they are? Why they are hanging out with these people? Why they are doing this? लेकिन दूसरे लोग जो देखते रहे ये क्यों कर रहे हैं वो उनके साथ क्यों समय बिता रहे हैं But he was saying, लेकिन वो कह रहे हैं after that one time came, कि बाद में एक ऐसा समय at the आया time of exams, एग्जाम के समय that the problem across some strike or something was there for 3-4 days. 3-4 दिनों के लिए स्ट्राइक था These people, ये लोग the 5 people, ये 5 लोग never went hungry. कभी भी भूखे नहीं गए They used to call them and to give them food every day. वो उनको बुलाते थे और हर रोज उनको भोजन देते थे So when you sow into somebody else's lives, जब हम किसी और के जीवन में बोते when you हैं make them feel important, जब हम उनको महत्वपूर्ण महसूस even though they are at not your level, शायद वो आपके स्तर पर नहीं होंगे the way you talk with others, way you treat others, आप दूसरों से कैसे बात करते हो उनसे बर्ताव कैसे make करते them हो feel big, उनको बड़ा it महसूस always come back to you. वो वापस आपके पास ही आता है Beloved, you can never go wrong. प्रियो आप कभी इसमें गलत नहीं हो So Jesus is saying, यीशु कहता है if they need a tunic, कि अगर उनको जो नालिश की जरूरत है give them your cloak तो also. दोहर भी दे दो Be selfless. और आप खुद का त्याग कर दो Concern yourself with the welfare of other people, he और says. अपने आप को दूसरों के हित के चिंता रखो Let us come back. फिर से हम वापस He आते हैं। says, refuse to revenge. कि हम बदला ना ले Second thing, दूसरा selfless spirit. कि आप निस्वार्थ आत्मा से Then after जिए that he says, फिर से वो आगे कहता है he says, if somebody asks you to give and he wants to borrow, do not turn away. कि अगर कोई कोई देना चाहता है तो या कोई तुमसे उधार मांगता है तो तुम वहां से मुंह ना मोड़ो Give generously to those who are in need, he says. जो जरूरत में है आप भरपूरी से उनको दो If you have the financial ability to give, अगर आपके अंदर वो आप आर्थिक रीति से वो मुमकिन है if God has blessed you, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है you have a Christian responsibility to give. आपके अंदर वो मसीह जिम्मेदारी है कि आप वो दे If you have financial ability, God has given you that ability. अगर आर्थिक स्थिति में परमेश्वर ने आपको वो क्षमता दिया You है have a Christian responsibility to give and sow. और आपके और हमारे अंदर वो आत्मिक जिम्मेदारी है कि हम दे और बोए This is how the devil blocks us. और Because we see people in need, और हम लोगों को जरूरत में देखते and हैं devil starts speaking to us why to give them. और फिर शैतान बात करने लगता है कि हम क्यों दें We look at the other way and we find excuses. और हम दूसरे और मुंह मोड़ते हैं और हम कारणों को And we ढूंढते come हैं up with many answers. और हम बहुत से उत्तरों के साथ आते हैं We start thinking if I give them money, they're going to drink or whatever it is. हम सोचने लगते हैं कि अगर हम उनको पैसा दें तो वो शायद शराब They don't deserve it. वो उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे We excuse ourselves. हम अपने आप को वहां से Jesus is saying here, if you have the ability to give, यीशु यहाँ पर ये कहता है कि अगर तुम्हारे में वो क्षमता है कि तुम दे we have the responsibility to give. आपके अंदर वो जिम्मेदारी है कि आप वो दे Maybe the person is a homeless brother शायद वो व्यक्ति जो उसका कोई घर ना होगा or the sister standing whom you know या is in trouble. या ऐसी बहन जो खड़ी है और आपको पता है वो समस्या में है So many times I see Jerusalem asking money and buying and giving some people meal. और मैं बहुत बार देखता हूं कि रुचिरा मुझसे पैसा मांगती है और बहुत से लोगों उनको भोजन देती है Because whenever we travel, some people were there, she will buy and give them something. और बहुत बार जब हम यात्रा करते हैं कहते हैं अरे कुछ खरीद के उनको खाने के लिए देते हैं So all I want to say is, let's put that habit inside us. और मैं यही कहना चाहता हूं कि उस आदत को हम अपने अंदर डालें Don't think like that I am giving my offering and tithe to the church, so I am not obligated to give to others. और ये ना सोचें कि अगर मैं दान दशांश कलीसिया में देता हूं तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं You have है ability और अगर क्षमता है and you have the responsibility to और give. आपकी जिम्मेदारी है वो कर रहे And हैं nobody can say I don't have the ability. God has given all of us the ability. और कोई भी ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने हमें वो क्षमता नहीं दिया है
some days back I was seeing a video. कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। How many people you heard about Dead Sea? और कितने लोगों ने डेड सी के बारे में सुना है? Dead Sea is in the place, the Israel, we can see the Dead Sea. और डेड सी जो है वो इजराइल में है। So why it is called Dead Sea? वो डेड सी उसे क्यों कहा The जाता है? Dead Sea says the concentration of salt is very high over there. और उसमें जो नमक है, नमक जो है वो बहुत ज्यादा है। Because the concentration of salt is very high, so no plants, so nothing can live in that. और वहाँ पर नमक की जो मात्रा है वो इतना ज्यादा है कि वहाँ पर कोई पेड़ या पौधे जी नहीं सकते। Nothing can survive, nothing lives in the Dead Sea, no life. और उसमें कोई जीवन ही नहीं है। Because the concentration of salt is very high in that. क्योंकि उसमें नमक की जो मात्रा है बहुत बड़ा है। But it's very amazing to learn लेकिन ये सीखना बहुत अच्छा the है water from the Dead Sea कि जो डेड सी से का जो पानी है originates from Mount Hermon. वो माउंट हर्मन से आता है। The snow caps melts and come from there, और जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघलते हैं and it ऊपर runs down, और वो वहां से आता है and it comes to the Sea of Galilee. और गलीली के समुद्र में आता है। We know Sea of Galilee, और हम गलील के समुद्र को where the जानते Peter, हैं। Andrew, James, John are there, the fishermen over there. और जहाँ पर जेम्स जॉन और जो मछुआरे थे वहाँ पर। So there is life in the Sea of Galilee. और गलील के समुद्र में जीवन The है। Sea of Galilee receives water from there, the Mount Hermon. और गलील का जो समुद्र है माउंट हर्मन से पानी प्राप्त Then करता it है। releases to water to Jordan River. और फिर वो यरदन नदी के लिए पानी देता है। Jordan River is the place where John was baptizing the people. और यरदन नदी वो जगह है जब बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा So Jordan River has life. It got plants, it got fishes. और यरदन नदी में जीव जंतु प्राणी मछलियां है। And the water departs over there. और पानी वहां से आता है। And from the water there goes to Dead Sea, और वहां से पानी जो है डेड सी जाता है which got no life. जिसके अंदर कोई So जीवन there's नहीं। one question that we have to ask. और एक सवाल जो हमें पूछना If है the water is coming from the Mount Hermon where there is life, कि पानी जो माउंट हर्मन से आ रहा है वहां से आ रहा है जहाँ पर it जीवन is है। giving to water to Sea of Galilee there is life. गलील के समुद्र में जहाँ पर जीवन है वहां पर पानी देता It's है। coming, water is coming to Jordan River where there is life. यरदन नदी में पानी आता है जहाँ पर जीवन है। How does life giving water from Mount Hermon, when it comes to Dead Sea, it stops life? और ये जो पानी जो माउंट हर्मन से आता है सभी जगह पर जीवन देते हुए जब वो डेड सी में आता है तब वहां पर जीवन क्यों नहीं है? Sea of Galilee got an inlet and it got an outlet. It go to Jordan. और सी ऑफ गलील का जो समुद्र है उसका एक ओर से पानी आता है और यरदन नदी में जाने के लिए Jordan River as an inlet, it gets the water and it goes to Dead Sea. It got an outlet. और यरदन नदी के पास भी एक जरिया है जहाँ से पानी आता है वो बहाकर और फिर वो डेड सी Once the water comes to Dead Sea, एक बार जब पानी डेड सी में आता there है is no outlet. वहां से पानी बाहर The जा sun ही नहीं evaporates the water. Sun evaporates the water. और वो पानी जो है वहां पर भाप बन And the जाता है concentration, the salt is become more intensified over there. और वहां पर जो नमक का जो मात्रा है वो बढ़ते The जाता है। problem with the Dead Sea is Dead Sea know how to receive. और समस्या डेड सी से ये है कि वो सिर्फ प्राप्त करना चाहता है It don't know how to release. लेकिन वापस देना या छोड़ना नहीं Dead Sea जानता। know how to ask. और उसको मांगना पता है Dead Sea know how to beg. और भीख मांगना उसे पता But it है doesn't know how to be a blessing to other people. लेकिन वो आशीष को दूसरे को कैसे देने नहीं जानता। Knows how to beg for the things which you want in life. और जो जीवन में उसकी जरूरत है वो उसका भीख मांगना But it जानता doesn't know है how to give to someone who needs it. लेकिन किसी को जब जरूरत हो वो देना नहीं जानता। When you can give, जब भी आप दे सकते हो आप दो receive and release. और आप प्राप्त करो और आप कुछ छोड़ो। If you don't do that, अगर हम वो नहीं करते what life God gives, जो जीवन परमेश्वर देता है it can turn to death in our hands. वो हमारे हाथों में मृत्यु बन सकता है। We should know how to give. हमें देना कैसे ये समझना है। Hallelujah. Hallelujah. Refuse to revenge. और पहला है कि हम बदला ना ले। The second is दूसरा selfless spirit. और निस्वार्थ आत्मा। Third is give generously. और तीसरी बात ये है कि आप भरपूरी से दें। Fourth and the last one, I completed it quickly. और चौथा और आखिर का बात जो हम जल्दी से खत्म You see, if करेंगे। man compels you to go 1 mile, अगर मनुष्य तुम्हें एक कोस आने कहता है, if a man compels you to go 1 mile, अगर एक व्यक्ति तुम्हें एक कोस जाने कहता है, then go 2. तो उसके साथ दो कोस चले जा। Can we say second mile? मतलब दूसरा कोस भी जाना Can है। we say it together? क्या हम साथ में गाएं? Second mile.
So here it says, और यहाँ पर वो ये कहता है that's fourth thing which identifies you as a follower of Christ. So you say you have faith in Christ. चौथी बात जो आपको मसीह में आप हो ये इससे पहचाने या जाने जाते हो You go second mile. कि तुम वो दूसरा कोर्स भी जाते हो, Walk extra mile. आप एक और कोर्स मेहनत करते हो, एक walk extra mile. एक और एक कोर्स मेहनत। Now understand what Jesus is teaching. अब यीशु क्या सिखा रहे हैं समझे। All are awake? सब जागे हैं। This is very much important. Anybody feeling hungry? किसी को भूख लग रहा है? लगा है? You have to wait then. फिर आपको रुकना होगा। Okay. So here Jesus is teaching. तो यीशु यहाँ पर सिखा रहा है When you go back at the time of Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के समय में जाओ so those people who were staying there, they could have understood this. जो लोग वहाँ पर रहते थे शायद वो ये समझते थे, You know, because it was the custom on those days. क्योंकि उस समय में ये रिवाज था The Romans were taken over the rule from the Persians. कि जो रोमियो लोग हैं वो पर्शी लोगों से उन्होंने राज ले They लिया था। adopted this policy. उन्होंने इस बात को अपनाया If any Roman soldier कि अगर कोई भी रोमियो का जो सोल्जर or है any government official या कोई भी सरकार का सेवक to है, call a citizen, अगर उससे कोई भी जो लोग हैं उनको बुलाना require है them to carry a load, require them to carry something for them, और उनको कुछ अपने साथ ले जाना था, they have to do it for 1 mile. उनको एक कोस के लिए वो करना है। If you're standing in the crowd, अगर आप भीड़ में खड़े हो, a Roman soldier calls you out from that अगर उसमें से एक रोमियो से सैनिक आपको उसमें and से make you बुलाना, carry his burden for 1 mile, और वो आपसे कहता है कि उसका जो सामान है 1 मील तो you have to do it. There is no other option. आपको वो करना ही है, कोई उपाय नहीं है। We know this is happening in the New Testament at the crucifixion of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह नए नियम में भी होता है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के Bible समय। study, Roman soldier is calling Simeon और बाइबल से Simon. बाइबल स्टडी में कि जो सैनिक है वो सिमियोन साइमन and को to बुलाता है carry the cross of Jesus Christ, कि वो यीशु मसीह के क्रूस को उठाए, because you have to compel, you have to oblige to that to क्योंकि- carry somebody for 1 mile. आपको वो करना ही है, एक कोस तक आपको So उनके साथ 1 रहना है। mile was forced to do. और एक कोस आपको करना ही है 1 mile was demanded of you. और आपको वो एक कोस पूरा करना ही 1 है mile is what you have to do. और वो एक कोस जो है आपको But किसी Jesus तरीके is से- saying here, लेकिन यीशु यहाँ पर when कहता है, somebody is asking you to do 1 mile, जब कोई आपको एक कोस करने कहता है you do आप 2 mile. 2 कोस करो। That is a deliberate decision. That is a voluntary decision. That is not a rule. और ये नियम नहीं है, ये आपका खुद का इच्छा है। You have expected to do more than what you asked for. जो तुमसे मांगा है उससे बढ़कर ये अपेक्षा है कि तुम करें। More than what you demanded for. जो तुमसे मांगा है या पूछा है उससे बढ़कर आपको करना है। Hallelujah. हालेलुया। You are understanding this? क्या आप ये समझ रहे He is हो? saying we should live a life such a way. वो कह रहा है कि तुम्हें इस प्रकार का जीवन जीना है। Let's not aim for only minimum. Let's do the best. वो सिर्फ कोई साधारण या कम से कम की बात को ना हो, लेकिन सबसे उत्तम हो। Always look to exceed the requirement which you have. और जो भी जरूरत है आपसे वो उसको आप बढ़कर करें, To exceed what the demand is. या जो आपसे मांगा गया है उससे बढ़कर To आप करें। exceed what is written in my job description. जो मेरे काम के डिस्क्रिप्शन में लिखा है उससे बढ़कर To मैं करूं। exceed what people asked you to do. जो लोग हमसे मांगते हैं कि हम करें उससे बढ़कर हम One करें। of the way that you mark as with a child of God, और एक तरीका जो आप पहचाने जाओ क्या परमेश्वर के पुत्र Bible हो। says we should have the spirit of excellence. बाइबल कहता है कि सर्वोत्तम करने का हमारे अंदर आत्मा होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to do that the best way. मैं उसको सबसे उत्तम तरीके से करूंगा। Because when you do that, क्योंकि जब हम वो we करते start हैं, thinking that good enough is not good enough. क्योंकि फिर हमें ऐसा लगता है कि जो हमने बेहतर किया वो बेहतर नहीं When है। you do that good, God will be glorified in our life. जब हम सबसे उत्तम करेंगे परमेश्वर So हमारे somebody जीवन encourage में you. तो मैं आपको उत्साहित Learn करना to चाहूंगा go beyond कि आप आगे बढ़ना और what आगे is बढ़े, required and requested of you. और जो भी आपसे मांगा गया उससे भी आगे आप जाए। You have to go to the second mile. आपको दूसरा कोर्स जाना है। Now I'll close with this. इससे हम अंत करेंगे। All are attentive? क्या सब ध्यान दे रहे There are हैं? 2 types of people in the church, कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हैं। or 2 types of people which we meet in our life. हमारे जीवन में 2 प्रकार के लोगों को हम मिलते Are you हैं। ready? क्या आप तैयार हैं? One is 1 miler, एक व्यक्ति जो 1 कोस जाता है, and the second is 2 miler. दूसरा है जो 2 कोस जाता है। People who do just what we said. और जो लोग जो सिर्फ
कहा गया है वही करते हैं, Or those people who do exceedingly beyond what you spoke. और जो लोगों को कहा गया है जो बात किया उससे भी बढ़कर वो Those करते people हैं। who accept the mediocrity, we can say like the mediocrity. और जो लोगों ने साधारणता को अपनाया है, Or those who like to live in excellence. या वो लोग जो सर्वोत्तम में जीना पसंद करते हैं। Some people think I just want to pass, just to pass 35 marks. और कुछ लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं, 35 मार्क्स। Some people that is not acceptable for me. I want to do the best. और कुछ लोगों के लिए वो मेरे लिए सही नहीं है, मुझे सबसे I am not उत्तम करना content है। with the bare minimum in my और life. जो मेरे में साधारण है उसमें I मैं want खुश to नहीं take हूँ। to the next level. मुझे अगले स्तर पर लेकर The जाना question we है। have to ask ourselves: Are me or I 1 miler or 2 miler? और सवाल जो हमें अपने आप से ये करना है कि क्या मैं 1 कोस जाने वाला हूँ या 2 कोस जाने वाला हूँ। Daniel, the Bible says, दानियल बाइबल में कहता he है distinguished himself as the second mile person. कि उसने अपने आप को अलग किया ये बताकर कि वो 2 कोस Because जाने he वाला said है। he had a spirit of excellence inside him, he says. उसके अंदर सर्वोत्तम की आत्मा थी, बाइबल कहता है। Because of that, what happened? उसके कारण क्या हुआ? He was separated, or he had distinguished himself from the rest of the crowd as something different. और उसने अपने आप को सभी से उस भीड़ से अलग किया था। When you do the second mile, जब आप दूसरा कोर्स करते हो, you are pulled out from the ordinary. आप साधारण से आपको निकाला जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Because second mile क्योंकि जो दूसरा कोर्स is है not a job profile. ये तुम्हारे काम में नहीं है। Second mile is your mentality. दूसरा कोर्स जो है ये आपका मनोरीति है। What do you do in your work? आप अपने कार्य में क्या करते हो? Let's ask God. परमेश्वर से मांगे, Lord, I want to the person who would like to walk extra mile, Lord. परमेश्वर मुझे वो व्यक्ति बनना है जो वो एक और कोर्स चले। Now the problem is, हमारा समस्या ये to walk है, a second mile, do extra, you require a deliberate decision you have to take in your mind. और इस दूसरे कोर्स को करना या दूसरा और ज्यादा करना आपको अपने मन में और निर्णय लेना है। I should have an adjusted attitude in my life. और मुझे मेरे जो सोच विचार को सही करना है, Because Jesus said the first mile is forced on you, क्योंकि यीशु कहता है कि जो पहला कोर्स है ये तुम पर डाला गया the है, second mile is voluntary. और दूसरा जो कोर्स है वो तुम्हारा स्व इच्छा The है। first mile is demanded you from outside. और जो पहला कोर्स है तुम्हारे बाहर से मांगा गया है, Second mile you will only know if you want to do it from inside. और दूसरा कोर्स आपको अंदर से पता चलेगा कि आपको वो करना है। That says I want to do more for the Lord. ये है कि मैं परमेश्वर के लिए ज्यादा करना I चाहता want to हूँ, do more in the life. मैं जीवन में बहुतायत It's a करना better चाहता attitude. हूँ। और ये सही मनोरीति है। Hallelujah. हालेलुया। You can say I want to do more for the Lord. और हम ये कह सकते हैं मैं परमेश्वर के लिए और ज्यादा करना चाहता हूँ। I am going to exceed what God has asked me to do. परमेश्वर ने जो मुझसे मांगा है उसको मैं बहुतायत से करूंगा। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाए। So the excellence, और जो सर्वोत्तम है, the second mile, दूसरा जो कोर्स is है, not about performance, it is about attitude. और वो कोई परफॉर्मेंस के बारे में नहीं, लेकिन वो हमारे मनोरीति के बारे में है। Now the question we have to ask ourselves, अब सवाल हमें ये अपने आप से पूछना है what hinders that from doing that? कि वो करने से हमें क्या रोकता है। Every day we go to work with a bad attitude. और हर रोज हम काम में एक बुरे मनोरीति को लेकर Or जाते come हैं, to church, do the things of the church with murmuring. या कलीसिया में आकर या कुड़कुड़ाकर कलीसिया के कामों को करते हैं, Or we start doing the things with a bad attitude in our life. या अपने जीवन में गलत मनोरीति से हम कार्य को You करते हैं। do the things with no joy in your face. We आप- cannot see, only laughing. आपके मुख पर कोई खुशी नहीं दिखता है और आप वो काम करते हो। Second mile is the mentality. दूसरा कोर्स आपका मनोरीति है। So we have to say ourselves, I have to do better. हमें अपने आप से कहना है मुझे सर्वोत्तम करना I है, am going to do the second mile. मैं दूसरा कोर्स करूंगा। When you start doing the second mile, जब हम दूसरा कोर्स करना शुरू the करते हैं, people around you will be surprised. जो लोग आपके आसपास है वो आश्चर्यचकित हो गए। Hallelujah. हालेलुया। They'll be surprised. वो आश्चर्यचकित हो गए। They expected less from you, और उन्होंने शायद आपसे कम अपेक्षा किया but you होगा, gave them more. लेकिन आपने उनको और ज्यादा You gave them दिया, excellence. आपने उनको सर्वोत्तम दिया। Can you adjust our attitude in life? क्या हम अपने मनोरीति को हमारे जीवन में सही Can करें? we take a deliberate decision to go beyond and above? क्या हम ये स्वेच्छा ले कि हम बढ़कर और आगे जाएंगे? Now the problem is, समस्या अब ये when you है, do the second mile, extra mile, जब आप दूसरा कोर्स करते हो, you should have the courage
to be criticized. और आप में वो शौर्य होना चाहिए, धाड़स होना चाहिए कि आपके विरुद्ध में कोई बोले। The people who live in excellence जो लोग सर्वोत्तम में जीते हैं, is always criticized by the people who live in mediocrity. जो साधारण तरीके से जीते, वो हमेशा उनको कुछ ना कुछ कहते हैं। People who walk in excellence जो लोग सर्वोत्तम में चलते हैं always criticized by the people below. और जो उनके नीचे लोग हैं, हमेशा उनको कुछ ना कुछ कहते हैं। They say, वो कहते हैं, just imagine one Jew is taking one load and carrying his walked 1 mile. और आप कल्पना कीजिए कि एक यहूदी एक लोड लेके 1 कोस चल रहा है। The second mile walking is his decision. He took the decision to walk again the second mile. उसने ये निर्णय लिया कि मैं दूसरा कोस भी चलूंगा। The people will say, लोग कहेंगे, why you are doing that? तुम वो क्यों कर रहे हो? What you will get by doing that? और तुम्हें ये करके क्या मिलेगा? एक बार किया तो बार बार करना पड़ेगा। If you do it once, you'll have to again do it. Why you want to do that? तुम्हें वो करना ही क्यों जितना है? कर रहे हैं उतना करो। How much you have been told, do that much only. You come to church, तुम कली से आते हो, 10 o'clock, come by 10 o'clock only. 10 बजे आते हो, 10 बजे ही आओ। Don't come 9 o'clock and start doing the work of the church. 9 बजे आके कलीसिया के काम को ना करो। तो क्यों कर रहे हैं? Why are you doing it? You spending work for the Lord, कुछ मिलने वाला है? चर्च कुछ देने वाला है? Are you doing the work of God? Is the church going to give you anything? Expect the reward from the Lord, not from the church. परमेश्वर की ओर से उस वरदान को या उस भेंट को अपेक्षा कर, कलीसिया See, से when नहीं। you want to walk in excellence, जब आप सर्वोत्तम में चलना चाहते हो, when you start walking the second mile, जब आप दूसरा कोस चलना शुरू the करते हो, people around you or surrounds you जो लोग आपके आसपास है, get upset by your excellent spirit वो आपके सर्वोत्तम आत्मा से and they निराश start होते हैं criticizing you. और वो आपको कुछ अनशन They कहते start हैं, putting you down. वो आपको नीचा So दिखाते the हैं। second mile exposes the first mile. तो The person जो- who is the first mile. जो दूसरा कोस है वो पहले कोस के So लोगों what को happens? बताता Then है start criticizing you और फिर क्या होता है, वो आपको तुझ जानते हैं because they are not willing to do the second mile. क्योंकि वो तैयार नहीं है दूसरा कोस Because they करने। have the problem with the people who are walking the second तो mile. जो दूसरा कोस जो लोग चल रहे हैं उनके साथ उनका समस्या है। If somebody tells you अगर कोई तुमसे कहे why you are doing the extra mile, कि तुम वो 1 कोस क्यों कर रहे हो, he said that is the spirit, वो that's the कहे- attitude. उनसे कहो कि वो मेरा मनोरथी है, वो मेरी आत्मा है। Learn to speak. और बात करना सीखे, God is my rewarder. परमेश्वर मेरा भेंट देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Why you do that? तुम वो क्यों करते हो? You didn't get anything from it. तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलता, There is no reward in that. उसमें कोई वरदान नहीं, भेंट नहीं है। Listen to that. I'll get close with this. इससे हम मान करें, ध्यान से When सुने। you do the second mile, जब आप वो दूसरा कोर्स करते हो, second mile creates an opportunity to next level. दूसरा कोर्स आपको वो मौका तैयार करता है अगले स्तर पर जाने। When you do the extra mile, जब आप वो दूसरा कोर्स करते हो, more than what expected from you, जो आपसे अपेक्षा है उससे बढ़कर जब आप करते हो, you are creating an opportunity. आप एक मौके को तैयार करते Move to हो the next level. कि आप अगले स्तर पर जाए। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहता है, when you read this progression of the events what Jesus is speaking, जब आप इस वचनों को पढ़ोगे, जब जो यीशु बात करता है, when you're ready to get slapped, जब आप तैयार हो थप्पड़ खाने के when you're लिए, ready to get slapped, जब आप तैयार हो थप्पड़ खाने के if you're लिए, ready to get sued, अगर आप तैयार हो कि आपकी नालिश हो, if you're compelled to walk 1 mile and 2, और अगर आपको 1 कोस चलने का है लेकिन तुम 2 कोस चलने तैयार हो, you can go above and beyond. और तुम बढ़कर आगे बढ़ सकते And हो, someone who asks you, you are able to give them. और जब कोई तुमसे मांगे तो तुम उसे दे सकते Now हो। everybody to close their eyes for a moment विनती करते कि सभी लोग कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, and tell God, परमेश्वर से कहे, God, परमेश्वर I must have treated unfairly, Lord. शायद मैंने गलत बर्ताव किया होगा, Lord, I want to go above and beyond, Lord. और परमेश्वर मैं बढ़कर आगे जाना I चाहता want to हूँ। go the second mile. परमेश्वर मैं दूसरा कोस जाना चाहता हूँ, Lord, I want to go beyond my expectation, Lord. और परमेश्वर जो मेरी अपेक्षा है उससे बढ़कर मैं आगे जाना I want to चाहता हूँ, press into excellence, Lord. और परमेश्वर जो सर्वोत्तम है उस पर मैं When जाना you चाहता do हूँ। that, the end result is the blessing. जब हम वो करते हैं तो अंत का जो परिणाम है वो सबसे उत्तम है। Father in heaven, Lord, स्वर्गीय पिता, thank you for the word Lord, which came, Lord. जो वचन आया उसके लिए धन्यवाद, Thank you, Father, for teaching us, Lord. हमें सिखाने के लिए धन्यवाद Lord, this is प्रभु। our prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है, Help us have the excellent spirit, Lord. हमें सहायता कर कि हमें सर्वोत्तम की आत्मा To हो, go to the extra mile, go and do the extra mile, Lord. कि हम दूसरा कोस जाए
So give us that spirit of excellence, Lord. तो हमें वो सर्वोत्तम की आत्मा दे, Help us to give generously, Lord. हमें सहायता कर कि हम बहुतायत से दे, To have a selfless spirit, Lord. और हमारा निस्वार्थी आत्मा And to हो, refuse revenge, Lord. और हम बदला ना ले प्रभु, Like that, we identify ourselves as Jesus, disciples of Jesus ताकि Christ. उसके द्वारा हम अपने आप को यीशु मसीह से पहचाने। Amen. आमेन। Let's put the hands together and thank the Lord. आइए हम जोरदार ताली बजे परमेश्वर को धन्यवाद दे। Hallelujah. हालेलुया। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। उठ जा मेरे बंधु, तू खड़े होके चल, यीशु नाज़री के नाम से। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। चार दिन से जो कब्र बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने पुकारा, तू बाहर निकला, मुर्दा उठ खड़ा हो गया। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। हमको मिला है सुनहरा मौका, यीशु को बुलाए दिल में। ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये आजकल की सोच नहीं है, ये तो असल जिंदगी की बात है। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, झूमो झूमो यीशु के लिए झूमो सब। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। ओ ओ ओ झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे। झूम झूम झूमारे झूमा, झूम झूम झूमारे झूमा, यीशु क्रिस्त पधारे।
हालेलुया। हालेलुया।